Choose the correct alternative. The amount Della got from Madam was $20. Della's hair reached below the knees and made itself a garment for her. Jim needed a new overcoat. The chain was made of platinum. Short answers. How were Jim and Della planning to celebrate Christmas? Jim and Della were planning to give a special gift to each other to celebrate the Christmas Eve. What were the two possessions of the James Dillingham Youngs in which Jim and Della took mighty pride? By whom was Jim's possession transferred to him? The two possessions of James Dillingham Youngs in which Jim and Della took mighty pride were Della's hair and Jim's golden watch. Jim got that watch from his father, and his father got that from his grandfather. Why did Della go to Madame Sofroni? Della went to Madame Sofroni to sell her hair and get some money so that she could buy a beautiful present for her husband, Jim. Jim said, "What a beautiful, nice gift I have got for you." What was the gift? How did Della react? The gift was a comb set, the set of combs, which were very beautiful, which Della has coveted for a long time. He had craved and yearned for them without the least hope of possession because they were too expensive. And first of all, she gave an ecstatic scream of joy, but then soon she changed into hysterical tears because the hair which were to be adorned by them were now gone. जिन बालों में उसको वो यूज करना था, जिनके लिए वो बहुत दिनों से चाहती थी उनको लेना, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थे, दैट इज वाई वो नहीं ले पा रही थी। और अब जब उसको वो मिला, वो गिफ्ट मिला, तो अब उसके बाल नहीं थे। It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor horror. What explanation did Jim give for his reaction on Della's hair? जिम ने इस बात से उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि डेला की हेयर नहीं है, शी हैज गॉट हर हेयर कट, बल्कि वो इस बात से दुखी था कि वो जो प्रेजेंट लाया था, जो गिफ्ट लाया था, वो उसके हेयर के लिए थी। इट वाज टू अडॉर्न हर हेयर, बट अब शी हैड गॉट हर हेयर कट, तो उसकी जो गिफ्ट थी वो यूजलेस हो गई थी। आंसर इन डिटेल। Describe the anxiety of Della after she had sacrificed her hair. When she had sacrificed her hair, so she was anxious about the reaction of Jim. उसको बार बार ये लग रहा था कि जिम का रिएक्शन क्या होगा, whether he would like her in her new look, what will he say, क्योंकि जिम को भी डेला के बाल बहुत अच्छे लगते थे और even he had bought a present which he had coveted and they were to adorn her hair. उसके बालों को सजाने के लिए वो सब कुछ लाया था। तो डेला वाज एंशियस कि उसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा। एंड देन शी ट्राइड टू कन्विंस हरसेल्फ कि जिम के लिए ही उसने अपने हेयर सेक्रीफाइस किए हैं, सो शी वुड ट्राई टू कन्विंस हिम। व्हाई डज द राइटर refer to the Queen of Sheba and King Solomon? What do you understand by it?
क्वीन ऑफ शीबा और किंग सोलोमन का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि उस जो पोजेशंस उनके थे उसकी वैल्यू को बताया जा सके. क्वीन ऑफ शीबा हैड एवरीथिंग, ज्वेल्स, ऑर्नामेंट्स, सब कुछ उसके पास था. लेकिन फिर भी अगर वो डेला के हेयर को देखती तो उसको जलन होती. She would have desired to have those long hair. तो इसलिए उस वैल्यू को बताने के लिए क्वीन ऑफ शीबा का जिक्र किया गया. और किंग सोलोमन who was a king, तो उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी. बट स्टिल if he had seen that golden watch of Jim, तो he would have envied him. उसको उससे जलन होती. बिकॉज इससे पता चलता है कि वो वॉच कितनी स्पेशल थी. Then question number 3, throw light on the remarkable qualities that Jim and Della had. Jim and Della were poor. Their economic condition was not good. They lived in a small house, small shabby house, but still they loved each other and they could do anything for the happiness of the other one. एक दूसरे की खुशी के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते थे. और जो इनके माइटी पोजेशंस थे जिनके लिए जो उनको दोबारा नहीं मिल सकते थे वो भी उन्होंने एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर दिए विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. In the title, The Gift of the Magi, what does the phrase the Magi stand for? The Magi stands for the three wise men thought to be kings or astrologers who followed a star to visit infant Christ and gave him valuable gifts. जो जीसस क्राइस्ट के लिए वैल्यूएबल गिफ्ट्स लेकर के गए थे when he was infant and was lying in the manger. True and false. Life is not made up of sobs, sniffles and smiles, with sniffles predominating. False, because it is said that life is made up of. Della saved 87 cents, of which 67 cents were in pennies. False. She saved $1.87. Della and Jim always quarreled with each other. False. Jim was late many times. False. Jim bought a beautiful necklace for Della on Christmas Eve. False. Presenting creative writing में है. Presenting a gift to someone is a matter of joy. Imagine that you have to present a gift to someone very dear to you. Narrate your experience. This you have to write. So you have to do. सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी को गिफ्ट दिया होगा. और किसी को जब हम गिफ्ट देते हैं तो सामने वाले की खुशी हमारे को देख करके हम खुश हो जाते हैं. तो you might also have had some experience of this type. तो अपने experience को आपको लिखना है in a short paragraph. Now you have to do B, C and E in this lesson. B, C and E. Is that clear? This is your homework. And now we will start the next lesson, the last lesson. इस लेसन 8 के बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी. Then I am going to start this lesson number 9. Do you want to ask anything? Any problem? Answer me.
वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर टेकिंग द क्लास. बाकी लोगों को नहीं पढ़ना है. कुछ पूछना है? संदीप, दिशा, इशिता. Okay, then I'm starting lesson number 9. The last lesson. It is written by Alphonse Daudet. He was a French novelist and a short story writer and has more than 3 dozen works of literature to his credit. He is considered to be one of the most iconic names of French literature. He portrayed human emotions in a very realistic manner. He is a French novelist and बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं. जाना पहचाना नाम है फ्रेंच लिटरेचर में. और ज्यादातर जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, उनको बहुत ही रियलिस्टिक मैनर में इन्होंने अपने वर्क में डिपिक्ट किया है. सो इट्स अ वेरी it is also an emotional story. It narrates this lesson में ये जो lesson है, the last lesson, it narrates an event about the year 1870 जब रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क कैप्चर्ड फ्रांस. रशियन फोर्सेस ने उनके रूलर बिस्मार्क के अंडर में फ्रांस को कैप्चर कर लिया था. यानी फ्रांस पर रशियन फोर्सेस का कब्जा हो गया था. द न्यू प्रशियन रूल discontinued the teaching of French in the schools of the two districts, Alsace and Lorraine. तो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच भाषा पढ़ानी बंद कर दी गई थी और फ्रेंच टीचर्स को कहा गया था कि वो वहां से चले जाएं. So let us see the experience of one such French teacher, Mr. Hamel. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. So the author is saying कि उस दिन स्कूल जाने में मैं बहुत लेट हो गया था और मुझे डर था कि डांट पड़ेगी. और स्पेशली इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमिल ने कहा था कि उस दिन हमारा जो टेस्ट था, पार्टिसिपल्स का टेस्ट होना था, यानी कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था. एक पल के लिए मैंने सोचा कि आज मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ, बाहर ही अपना टाइम बिताता हूँ, क्योंकि इट वाज अ ब्राइट डे. बर्ड्स वर चर्पिंग और जो रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी अपनी जो डेली एक्सरसाइजेज हैं वो कर रहे थे. और बाहर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को रेजिस्ट किया, यानी अपनी इस इच्छा को दबाया और तुरंत स्कूल के लिए रवाना हो गया. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और जब वो स्कूल जा रहा था ऑथर, तो टाउन हॉल यानी कि जो चौराहा होता है वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी और वहां एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था. तो जितनी भी न्यूज होती थी वो उस बोर्ड पर लिख दी जाती थी.
और पिछले 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज थी, जितनी भी बुरी खबरें थी, वो सब वहीं से हमको जानने को मिली थी। जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि लड़ाई हम हार गए हैं, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। और फिर मैंने खुद से कहा बिना रुके, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका था, कि अब कौन सी नई खबर है, क्या हो गया है जिसके लिए यहाँ भीड़ जमा है। बट ही डिड नॉट स्टॉप to know that because he was already late for school. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith walker who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden all out of breath. और जब मैं जल्दी जल्दी जा रहा था तो जो ब्लैक स्मिथ था, जो कि बुलेटिन पढ़ रहा था अपने अप्रेंटिस यानी कि अपने ट्रेनी के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ, उसने मुझे आवाज दे करके कहा कि इतना जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो ही जस्ट रैन टूवर्ड्स द स्कूल और मिस्टर हैमल के लिटिल गार्डन में वो पहुंचा, लगभग हाफते हुए। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. और सबसे पहली हैरानी उसको तब हुई जब वो स्कूल कैंपस में पहुंचा, तो उसने देखा कि यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता है तो वहां पर काफी शोरगुल होता है जो दूर से सुनाई देता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो लेसन्स रिपीटेड होते रहते हैं, टीचर्स की आवाजें, बच्चों की आवाजें, विच आर वेरी लाउड, और सारा शोरगुल दूर से ही सुनाई देता है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत शांत था, खामोश था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. और जब भी कभी मैं लेट हो जाता था तो मैं कोशिश करता था कि उस शोरगुल में चुपचाप अपनी डेस्क तक जाकर के बैठ जाऊं बिना किसी के देखे। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना क्वाइट था जैसे कि संडे मॉर्निंग व्हेन स्कूल्स आर नॉट देयर, जब क्लासेस नहीं होती हैं, स्कूल्स रिमेन क्लोज। तो उस तरह की खामोशी उस दिन नजर आ रही थी। Through the window I saw my classmates already in their places and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. और आज क्योंकि बहुत शांति थी, कोई तरीका नहीं था जिससे कि मैं चुपचाप जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाता, तो विंडो से मैंने देखा कि क्लासमेट्स मेरे बैठे हुए हैं, मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, उनका जो टेरिबल भयानक जो आयरन रूलर है वो उनके हाथ में है उनके। और फाइनली मुझे दरवाजा खोल करके जाना पड़ा एंड आई वाज लेट, तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हो रहा था और डर भी रहा था कि जाते ही डांट पड़ेगी। बट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, तो जनरली ही वुड नॉट हैव अलाउड हिम टू सिट इन द क्लास, बट उस दिन उन्होंने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही काइंडली उसको कहा, "गो टू योर प्लेस क्विकली." अभी हम लेसन स्टार्ट करने ही वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my side, did I see that our teacher had on his beautiful green coat
his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. और जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ, यानी कि मैं नॉर्मल हुआ, तो मैंने देखा कि मिस्टर हैमल ने जो ड्रेस पहन रखी है वो है जो जनरली वो प्राइज डेज पर या स्पेशल ओकेजन्स पर पहना करते थे. इट वाज नॉट अ नॉर्मल वन. Besides, the whole school seemed as so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. और फिर एक और हैरान कर देने वाली चीज मैंने देखी. सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, बहुत शांति थी, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात थी कि जो बैक बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, वहां पर गांव के लोग बैठे हुए थे और they were sitting quietly. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. तो ये सारे जो जाने पहचाने लोग थे, they were sitting on the back benches. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और वो लोग भी, जो गांव के लोग थे, वो बहुत उदास लग रहे थे, and they were also trying to learn something. When I was wondering about it all, yes, when I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." और अभी मैं इन सारी जो क्वेरीज थी, जो सवाल मेरे मन में उठ रहे थे, उनके बारे में हैरान हो ही रहा था कि मिस्टर हैमल ने अपनी गंभीर आवाज में, ग्रेव यानी सीरियस वॉइस एंड जेंटल टोन, उसमें उन्होंने स्टार्ट किया दैट दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. आज उनका ये लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर्स आ गए हैं कि सिर्फ जर्मन भाषा ही अब इन स्कूल्स में, इन दो सिटीज एल्सेस एंड लॉरेन, यहाँ पर सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, एंड फ्रेंच विल बी टीचिंग इन फ्रेंच विल बी स्टॉप. और नया मास्टर यानी न्यू टीचर विल कम टुमारो. इसलिए आज का ये आपका जो लेसन है, ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव. What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches, that was what they had put up the town hall. और ये जो शब्द थे, ये हथौड़ों की तरह मेरे दिमाग में टकराए, और मैं समझ गया कि टाउन हॉल पर जो नोटिस, बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस लगा हुआ था, वो इसी के बारे में था. My last French lesson, why, I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's eggs, or going sliding on the star. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And Mr. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और जैसे ही ऑथर ने सुना कि वो लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो वो बहुत ज्यादा
परेशान हो गया और उसको अफसोस होने लगा कि ये लास्ट लेसन है और अभी तक मुझे कुछ लिखना भी नहीं आता है इस फ्रेंच भाषा में और अब मैं कभी सीख भी नहीं पाऊंगा। देन ही वॉज फीलिंग सॉरी कि उसने अभी तक अपनी क्लासेस पर अपनी स्टडी पर अटेंशन पे नहीं किया था, मोस्टली क्लासेस बंक की थी, कभी लेसन्स पढ़े नहीं थे, कभी वो स्कूल बंक करके बर्ड्स एग्स या बाहर जो अपना टाइम स्पेंड करता था अपनी फेवरेट एक्टिविटीज में, तो ही यूज टू डू दैट। अब उस सब चीज पर उसको अफसोस हो रहा था, ही वाज रिग्रेटिंग ऑल दैट। और वो बुक्स जो उसको कभी बहुत ज्यादा न्यूजेंस बेकार की लगती थी या बहुत भारी लगती थी, जिनको वो स्कूल लाना पसंद नहीं करता था, ग्रामर, हिस्ट्री, एवरीथिंग, जिनसे वो हेट करता था, अब वो सब उसको ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रहे थे, उन पुराने दोस्तों की तरह लग रहे थे जिनको छोड़ना बहुत मुश्किल था। एंड मिस्टर हैमिल से भी वो बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। तो हालांकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, कई बार उनकी मार खाई है रूलर्स की उसने, तो वो सब कुछ वो भूल गया था, उनकी डांट, उनकी मार। बट ही वॉज वेरी अपसेट ऑन द आइडिया कि अब वो मिस्टर हैमिल को कभी नहीं देख पाएगा। मिस्टर हैमिल इज ऑल्सो गोइंग अवे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और अब सब कुछ समझ में आ गया था कि इस लास्ट लेसन की वजह से ही मिस्टर हैमिल ने वो स्पेशल ड्रेस पहनी है और इसीलिए वो जो ओल्ड मैन है विलेज के, वो वहां बैठे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अफसोस है कि उन्होंने अपनी भाषा नहीं सीखी, वो कभी स्कूल पढ़ने नहीं गए, तो दे वांटेड टू लर्न एटलीस्ट व्हाटएवर दे कुड। एंड शायद वो उस मास्टर, उस टीचर के सम्मान में भी वहां थे जिसने अपनी लाइफ के 40 इयर्स फेथफुली सर्विस करते हुए बिताए हैं। एंड दूसरी तरफ टू शो द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द कंट्री ऑल्सो, उस देश के प्रति अपना सम्मान वो जाहिर करना चाहते थे, जो कि अब उनका नहीं रहा, बिकॉज इट वॉज कैप्चर्ड बाय द रशियंस। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What should I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. और इतने में ही मैं ये सब सोच रहा था, मेरा नाम पुकारा गया। मुझे लगा कि अब पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे बताना है, जिसके बारे में मुझे भी नहीं आता है, तो मैं पहले शब्द पर ही अटक गया और सर झुका करके खड़ा रहा। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, उसको डर लग रहा था कि उसका क्या रिएक्शन मिस्टर हैमिल का होगा। I heard Mr. Hamill say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. और he was frightened कि उसको अब डांट पड़ेगी, Mr. Hamill will scold him, but to his surprise, Mr. Hamill ने कहा, I won't scold you, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा,
क्योंकि तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा। हम सब के साथ यही प्रॉब्लम है। हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता है। सो दोज पीपल हु डू नॉट वैल्यू द टाइम, जो समय की कीमत नहीं समझते हैं और हर चीज को कल पर या बाद में के लिए टालते रहते हैं, उनके लिए कल क्या लेकर के आएगा उन्हें भी नहीं पता होता है। तो सेम इज हैपनिंग विद यू। तुमने कभी कोशिश नहीं की सीखने की और अब देखो ये सब कुछ हो गया है। और अब इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी तुम्हें तब होगी जब कोई तुमसे ये कहेगा कि तुम फ्रेंच मैन हो, यानी फ्रांस के रहने वाले हो, और तुम्हें अपनी मातृभाषा ना तो बोलनी आती है ना लिखनी आती है। सो देन यू विल फील टू बैड फॉर दिस, और भी ज्यादा तुम्हें बुरा लगेगा। तो यू विल रिपेंट फॉर वट एवर यू हैव डन। तो वैसे ही तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने अपना जो कीमती समय था वो वेस्ट कर दिया। और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है, बाकी और भी जो लोग हैं उन सब के साथ ये प्रॉब्लम होगी। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then he said, Mr. Hamill ने कहा कि सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, हम सब भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स, जिन्होंने कभी सिंसियरली तुम्हारी स्टडी को नहीं लिया, जिन्होंने कभी तुम्हें कंपेल नहीं किया कि तुम पढ़ाई करो या तुम सीखो कुछ, बल्कि उसके बजाय वो चाहते थे कि तुम फार्म पर या मिल्स में काम करो ताकि थोड़ा और पैसा कमाया जा सके। और मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं अक्सर तुम्हें मेरे फ्लावर्स टू वाटर माय फ्लावर्स एंड गार्डन, पौधों में पानी डालने के लिए तुम्हें भेज देता था। और जब भी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम सब लोगों को छुट्टी दे देता था। सो वी ऑल आर टू ब्लेम फॉर ऑल दीज थिंग्स। Then from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us a lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. Then मिस्टर हैमिल और भी बहुत सारी बातें बताते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, और अगर हम उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, अगर उसको यूज करते हैं, उसको कभी भूलते नहीं है, तो जो लोग गुलाम बन जाते हैं, एंस्लेव्ड, यानी अब उनका जो देश था वो गुलाम हो चुका था, इट वाज कैप्चर्ड, तो उस वक्त सिर्फ एक भाषा ही है। अगर हम अपनी भाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं तो वो एक तरह से एक उस प्रिजन की चाबी की तरह इस्तेमाल हो सकती है, जिसको कि हम अपनी इस गुलामी को की जंजीरों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन ही स्टार्टेड द लेसन इन ग्रामर, एंड जो ऑथर है वो बहुत हैरान था कि जो कुछ भी वो बोल रहे थे अब उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा था, जो कि कभी नहीं आया था अब तक। तो रीजन शायद ये रहा था कि
मैंने कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं था, या उन्होंने कभी इतने पेशेंस के साथ सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। और आज ऐसा लग रहा था कि वो भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और हमें भी एक एक चीज समझ में आ रही है। एंड इट सीम्ड कि वो जाने से पहले सब कुछ हमें सिखा देना चाहते थे, सब कुछ हमें दे देना चाहते थे, जो कुछ उनके पास में था, या वट एवर ही न्यू। एंड जैसे कि सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे एक साथ। We'll continue it in the next class. Is it clear? Yes, have you understood?